Hello all students. In this video, we shall going to learn chapter number 3 of Snapshot, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyengar. तो ये पूरी स्टोरी मस्ती वेंकटेशन अयंगर आप नाम से हम देख सकते हैं कि कहाँ की होगी। या तो केरला मतलब केरला साइड की स्टोरी है पूरी। और इसमें किसकी बात की है? रंगा की मैरिज की बात की है। रंगा एक यंग मैन है और वो अभी ही बेंगलोर से आया है, रिटर्न हुआ है अपनी पढ़ाई ख़त्म करके। तो उसकी जो मैरिज है उसके बारे में यहाँ पे बात की। Ranga, the accountant son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returned to his village from the city of Bangalore, the crowd milled around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different. Or are they? So let's start this story. When you see this title, some of me ask Ranga's marriage, why not Ranga's Viva or Ranganatham Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mom feeling, one like a Jagannatham Vijaya or Girja's Kalyanam. Kalyanam is a marriage. Kalyanam एक जो है कन्नड़ा वर्ड है वहाँ का जो जिसको विवाह को है या मैरिज को कल्याणम बोलते हैं। बट देन दिस इज नॉट अबाउट द जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा's wedding. It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. Hosahalli is our village. You must have heard of it? No. What a pity, but it is not your fault. There is no mention of it any geography book, those side with English, written in English, probably do not know that such a place exists, and so make no mention of it. Our own people to forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walked into the pit. The rest will blindly follow it when both of the side in the England of our own geographer have not referred to it. You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is no even the shadow of our village on any map. अब इस पैरा में क्या कहा है कि मैंने टाइटल इस रंगा's मैरिज क्यों दिया है? मैंने इसका टाइटल रंगा's विवाह, रंगा's मैरिज, रंगानाथम विजया, जगन्नाथ विजया, गिरजा's कल्याणम ऐसा क्यों नहीं दिया? फैंसी टाइटल, सिंपल सा टाइटल क्यों रखा है? क्योंकि ये कोई बड़ी स्टोरी नहीं है, किसी फेमस स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट सिंपल स्टोरी है रंगा की, इसीलिए मैंने इसको सिंपल टाइटल दिया है, ऐसा हमारा राइटर कह रहे हैं। फिर वो अपनी विलेज की बात कर रहे हैं, होसाहली के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इसके बारे में, हमें रीडर को पूछते हैं कि आप इसको होसाहली के बारे में जानते हैं? अगर नहीं भी जानते तो ये बहुत ही दुख की बात है। और वैसे भी जो जियोग्राफी है या फिर वो यहाँ के हैं हिंदुस्तान के या फिर आउट ऑफ इंडिया के हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कोई घाव है, इसलिए उन्होंने कभी जियोग्राफिकली मैप में दिखाया ही नहीं। कार्टोग्राफर मीन्स को तो मैप, जो मैप बनाते हैं, उन्होंने कभी होसाहली को मैप में रिफर ही नहीं किया, क्योंकि वो भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे एक शिप दूसरी शिप को फॉलो करती है, वैसे उन्होंने बाकी जियोग्राफर को और कार्टोग्राफर को फॉलो किया है और उन्होंने होसाहली को कहीं भी मैप में नहीं दिखाया है। Sorry, I started from where and there, then went on in another direction. At the state of Mysore is the Bharatabarsha. What the sweet Karigandabu is the festival में। अब यहाँ पे बात की है स्वीट की, जो भुजिया टाइप की होती है, तो यहाँ पे उनको करिगंडाबू कहते हैं मलयालम या फिर कन्नड़ा में। तो ये जो कन्नड़ा वर्ड है वो जो फेस्टिवल में जनरली खाई जाती है ये मिठाई। और इसकी बात ये है कि होसाहली इज द मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज द
Carigandam. What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning, speaking glowingly, but I will stick to my opinion. I am not only one who speaks glowingly of Hosahali. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. He agreed with me. He had been to quite a few places. No, not England. If anyone asked him whether he had been there, he says no. Annaya is a Kannada word जो अपने elder को respect देते हुए बोला जाता है. I have left that to you. Running around like the praised dog is not for me. I have seen a few places in my time. तो as a matter of fact, he has seen many. अब यहाँ पे बात की है कि होसाली कैसी है, जैसे कि ये कैरीगंडाबू जो स्वीट है उसमें जो फीलिंग होती है, जिसकी जो फीलिंग इम्पोर्टेंट होती है, तो यहाँ पे मैसूर में भी ये होसाली कैसी है, इस फीलिंग के जैसी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये विलेज. और वो कहता है कि आप माने या ना माने, मैं तो अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूँगा. वो राइटर कह रहे हैं, और राइटर ये कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इसकी इतनी तारीफ करता हूँ, इसकी ग्लोरी दिखा रहा हूँ. और एक है यहाँ पे, उसका नाम है गुंडा पट्टा, वो भी इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेज करता है हमारे होसाली को. जाके वो बहुत सारी जगहों पे झाँके आया है. वो डॉक्टर है तो वो बहुत सारी जगहों पे झाँके आया है, ना इंग्लैंड नहीं गया पर और बहुत सारी जगहों पे झाँके आया है. फिर भी वो ये कहता है कि होसाली इज द परफेक्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे वही बात की है कि वो बहुत सारा वो कहता है कि मैं एक फ्री प्लेस डॉग की तरह, मीन्स की जो फ्री प्लेस होता है जिसको फीस डाउन करते हैं और वो एक जगह रह नहीं सकता, मैं वैसा नहीं हूँ. वहाँ घूमना नहीं चाहता हूँ इतना ज़्यादा. मैं जितना घूमा हूँ मतलब मैं ज़्यादातर प्लेस नहीं घूमा हूँ, ये बोलता है. पर राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो ज़्यादातर प्लेस घूमा है जो गुंडा भट्टा है वो. We have some mango tree in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it. Just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahmarandra. I once took one such a fruit home and the chutney was made out of it. All of it. The court we suffered from the after that it was when I went to the coach medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. और यहाँ पे होसाली के विलेज की ट्रीज की बात की है जहाँ के मैंगो बहुत ही ज़्यादा शार होते हैं. तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप अगर इसको पूरा खाना चाहो तो नहीं खा सकोगे. आप इसके सिर्फ एक बाइट लोगे तो भी आपके दिमाग में हलचल मच जाएगी, आपके पूरे शरीर में हलचल मच जाएगी. इतना शौक होता है, इतना शार्पनेस होती है उसमें. तो उन्होंने एक दिन मैंगो की चटनी बनाई थी और उन्होंने खाया था पूरी फैमिली में, तो उनको बोर हो गया था. और फिर वो जब डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपने जो मैंगो खाया है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, इस वजह से ये आपको प्रॉब्लम हुई है. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, so is everything else around our village. We have the creeper growing in the ever so fine water of the village park. Its flowers are the first to behold. Yet two leaves from not have the worry about the not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say, I am rambling. It is also always like that when the subject of our village comes up. But enough. If anyone of you would like to visit, drop me line. I will let you know where Hosahali is and the workings are there like there here. The best way of getting the know place is the visit it. Don't you agree? हम वो कहते हैं कि आप किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप होसाली रहते हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि होसाली में क्या क्या खास है. और यहाँ पे वो कन्नड़ा में जनरली किस पे खाते हैं, जो अपना मेल है वो पत्तों पे खाते हैं. तो वहाँ पे पत्तों की भी बात की है, ट्री की भी बात की है, स्पेशलिटी की बात की है. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to the Bangalore to study. It is difficult now. There are many who know English during the holidays. You come across them
every street talking in English. Those days we did not speak English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. वो अपनी कन्नड़ा भाषा ही ज़्यादातर बोलते थे. इंग्लिश वहाँ के विलेज में 10 ईयर अबो की बात कर रहे हैं, वो 10 ईयर पहले की बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे कोई इंग्लिश कुछ अच्छे से नहीं आती थी किसी को भी. और एक अकाउंटेंट का सन ही था ये रंगा, जो बेंगलोर में स्टडी करने गया था इंग्लिश. तो जनरली वो क्या बोलते थे, सिर्फ कन्नड़ा वर्ड बोलते थे. और कोई हॉलीडे में वहाँ पे घूमने आया हो तो वही वहीं से इंग्लिश वो सुनते थे, बाकी वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलना नहीं जानता था. What has happened is it disgraceful, believe me. The one other day I was in Rama's house when they got the bundle of firewood. Rama's sons come out of the way for it. He asked the woman, "How much should I give you?" 4 pice. 4 पाइस मीन्स के पहले की जो करेंसी थी, जब आज़ाद नहीं हुए थे तब की बात है. तो तब की जो करेंसी थी उसकी बात की है. तो वहाँ पर पाइस चलते थे पहले. She said the boys told her he did not have any change and asked her to come to the next morning. The poor woman did not understand English or change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to the Ranga's house and asked him, I understood what it meant. अब यहाँ पे बात की है कि उनके जहाँ जो लोग थे, विलेजर्स थे, नेटिव लोग थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो चेंज का भी मतलब नहीं समझते थे. तो एक औरत है जो राव के सन से जो वो लकड़ियाँ खरीदता है उस औरत से, और उसको बोलता है कि मेरे पास चेंज नहीं है. तो और उस कहता है कि तुम अगले दिन आ जाना, मैं तुम्हें दे दूँगा पैसे. तो जो औरत होती है, जो वो वुमन होती है, वो समझती नहीं है कि चेंज का मतलब क्या होता है. वो तो कन्फ्यूजन होकर वहाँ से चली जाती है. और तब हमारे राइटर को भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है. चेंज में छुट्टे पैसे, तो उसका मतलब भी वो तब रंगा के घर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है. दिस प्राइसलेस कम्युनिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो विस्परेड इन अवर विलेज डिकेड अगो. दैट वॉज रंगा's homecoming was the great event. People rushed to his doorstep announcing, the accounts and sons has come. The boy who had gone to the Bangalore for his studies is here. It seems and come Rangas is here. Let's go and have a look. Attracted by the crowd, I too went to the store in the country yard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. A fellow without any brains, said loud enough for everything to hear, what are you doing here? Then a younger, immature and without any manner, thinking that all these things were now of the past, I quacked. अब जो राइटर है वो देखते हैं कि रंगा के घर के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, और वो सुनाई भी दे रहा है. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्यों इतनी सारी, एक इनमेच्योर यंग जो बॉय है वहाँ पे खड़ा है, उसको पूछते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, या क्या यहाँ पे कोई मंकी का शो होने वाला है. तो वो इमेच्योर बॉय को रिप्लाई बिल्कुल ही इनरिस्पेक्टली देता है कि पता नहीं आप यहाँ क्या कर रहे हो. दूसरों को देखिए आप भी यहाँ आ गए, मतलब इमेच्योरली बहुत ही रूडली वो आंसर देता है उनको. तो वो वहाँ पे राइटर है हमारे क्वाइटली खड़े रहते. वो सारी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी? रंगा को देखने के लिए कि रंगा में क्या चेंज आया है, वो बेंगलोर से वापस आया है. Seeing so many people there, Ranga has come out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into the people called the black hole of Calcutta. Black hole of Calcutta means क्या है? कलकत्ता में एक ऐसा ब्लैक होल मीन्स के ऐसी जेल थी, इसमें सेल था, एक रूम था जो एक, उसमें बहुत सारे लोगों को रखा गया था और सब सफोकेशन की वजह से मर गए थे. तो इसलिए उसको तब से ब्लैक होल कहा जाता है. तो यहाँ पे वही बोला है कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और अगर ये सारी भीड़ रंगा के घर में जाती तो वो ब्लैक होल ही हो जाता. थैंक्स गॉड it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looking into his eyes and said, "The Janevara." जनेवरा इस जो ब्राह्मण धारण करते हैं झनोई, उसको जनेवरा कहते हैं कन्नड़ा में. Still there is not lost his caste. She went away soon after that Ranga's laughter. Once they realized that Ranga still had the same hand, leg, eyes and nose, the crowd melted away like the lump of the sugar in the child mouth.
I continued this. I stand there after everyone had gone. I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only that Ranga noticed me. He came near me and did namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessing." अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि रंगा का फिजिकल अपीयरेंस में वैसा ही था। तो एक बूढ़ी औरत आई, उसने रंगा को देखा, उसने जलोई धारण की हुई थी, तो उसने बोला कि कोई चेंज नहीं आया। उसने अपना कास्ट चेंज नहीं किया, फिजिकली वो वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले था और उसके बिहेवियर में भी कोई चेंज नहीं आया था। ये देख के सारे लोग वापस, जैसे शुगर लैम्प होता है वो मेल्ट होता है बच्चे के मुंह में, वैसे ही वो धीरे धीरे पब्लिक वहाँ से चली गई। जब वो सब चले गए तब हमारे राइटर रंगभा के पास जाते हैं। रंगभा उन्हें नमस्कार करता है और रिस्पेक्टफुली कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब हमारी स्टोरी आज की यहीं तक रखेंगे, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट